Okay, good morning, class. Class attendance, roll number 1, 2, 3. 503. 502 मैम. ठीक है, 4, 5, 8. 9, 10, 11. 509 present. Ma'am 10 present. Ma'am 11 present. ठीक है, 16, 18, 19. Ma'am 19. 21, Ma'am 22. 16 present, ma'am. Okay, 516 present. ठीक है बच्चे. 21, 22, 23. 21 present, ma'am. ठीक है. 25, 27, 31. 32, 33, 35. 32 present, ma'am. Ma'am 33 present. ठीक है. ठीक. हाँ जी. 36 प्रेजेंट है. 37, 38, 40. 42, 45, 46. 42 present, ma'am. 42. ठीक है बच्चे. 47, 48, 49, 50. 49 present, ma'am. ठीक है. 51, 52. 15, 0, 1, 2, 3. 02. 4, 5, 7. Ma'am 5 present. ठीक है बच्चे. 14, 18, 19. 20, 21, 22. Ma'am 15 20. Ma'am 22. ठीक है बच्चे. 5, 12. अंश विरमानी. अंकुश भी आया. ठीक है बच्चे. प्रेजेंट सुन लो. रोल नंबर 2, 3, 9, 10, 11, 6. हाँ जी. 8 भी. क्या? मैडम 537. 37 भी प्रेजेंट कर दिया. और कोई रहता है तो बोलो. Ma'am 550 present. 50 को भी प्रेजेंट कर दिया. 27 501. 1 भी कर दिया. और Ma'am 1501 present. कर दिया. और बोलो. अब सुन लो प्रेजेंट कौन है. रोल नंबर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 21, then 27, then 32, 33, 35, 36, 37, 42, 49, 50, 1501, 1502, 1505, 1520 और 1522. इनके अलावा कोई है? इनके अलावा कोई है जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी? फाइन. Ma'am 60 present. कर दिया बच्चे. कर दिया. ठीक है. ठीक है बच्चे. कल हम लोग स्टैक्स का टॉपिक कर रहे थे. आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक बाय टुडे. ठीक है. आई होप सबने रीड आउट किया एक बार कल का टॉपिक. हैव यू गॉन थ्रू द टॉपिक? पुश पॉप ऑपरेशन समझ लग गया. एल्गो समझ लग गया उनके. एल्गोरिथम समझ लग गए दोनों के. Yes ma'am लग गए. फाइन. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी एप्लीकेशन से. कल हम एप्लीकेशंस कर रहे थे. The very first application is when there is a need to reverse the string. So we make use of stacks. ठीक है. सीधा एक string को stack में push करो क्योंकि the way it is pushed is the reverse way it is pulled out. So it helps in the reversing of things या in calculating the mirror images. वो बात की बात है. पैलिंड्रोम चेक करना नहीं. आपको मिरर इमेज चाहिए किसी चीज की. ठीक है. Then the second application holds for the checking of the parentheses, whether there are opening and equivalent closing parentheses for an expression or not. It can be for a program, it can be for an arithmetic
expression. ठीक है? It also helps in calculation of the expression. Expression की calculation में भी help करता है. Expression क्या होते हैं? Anyone? Expression क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा? मैम जो हमारा गिवन मतलब कोड वगैरह हो मतलब उसे एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? बहुत बार सुना हुआ तुमने. मतलब मैम कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट. Yes, yes, exactly. Arithmetic expressions, algebraic expressions सुने होंगे. So whenever they will keep on writing like a plus b multiplied by c divided by d, this is an expression because it involves the operands. These a, b, c, d are the operands, and this plus, multiply, and divide are the operators. So such kind of things refers to expression. ठीक है? तो इसकी कैलकुलेशन भी ये स्टैक्स की हेल्प से की जाती है, जो आज हम करेंगे. We'll do the calculation of this expression using stacks. ठीक है? The last is quicksort. ये हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि अभी आपका ना सीक्वेंस टूट जाएगा चैप्टर का. So this I'll be covering after the completion of this chapter. ठीक है? क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है इतना खास, but it is a technique used to sort the elements, so we'll be covering after this chapter. Okay, fine. कल हमने रिवर्स का किया था. रिवर्स में मैंने आपको सीधा बताया था कि the way the string is entered to the stack is the reverse way it will be pulled out from the stack. पहले e बाहर आएगा, फिर s, फिर r, फिर e, फिर v, फिर e, फिर r. तो in this way we'll be getting the mirror image of the original one. क्योंकि स्टैक का लीफो प्रिंसिपल है, तो कोई भी चीज को उल्टा करके देखना है आपको. तो स्टैक इज हेल्पफुल. रिवर्स का मतलब ही यही है, किसी चीज का रिवर्स कैलकुलेट करना, मतलब उल्टा करके उसको देखना. तो स्टैक का यूज सिंपल करो. दिस इज द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स. ठीक है? द नेक्स्ट इज इट विल बी चेकिंग, it will lead to the checking of this validity of the expression containing nested parentheses. ठीक है? Stacks are also used to check whether a given arithmetic expression containing nested parentheses is properly parenthesized or not. मतलब उसके जो opening brackets हैं या closing brackets हैं, whether they are working parallelly or not. ठीक है? That is, it checks the validity of an expression whether the left parenthesis, braces or bracket there is a corresponding closing symbol or symbols are appropriately nested or not. जितने ओपन हुए हैं, अगर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन हुई है, एक राउंड ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो उसके वर्सेस स्क्वायर, राउंड एंड कर्ली प्रेजेंट होने चाहिए. अगर सारी राउंड्स हैं, तो अगर 5 राउंड ओपन हुई है तो 5 राउंड क्लोजिंग में भी होनी चाहिए. That is the validity of the expression. It will count. ठीक है? Like this. These are the valid inputs. Okay, this is invalid. क्योंकि एक राउंड ब्रैकेट की क्लोजिंग नहीं हुई. ऐसे ही ये कुछ वैलिड एग्जांपल्स हैं. वैलिड में कि विल टेक की इक्विवेलेंट कंसर्न होना चाहिए. ये नहीं कि कोई चीज पहले, जैसे ये है यहाँ पे देखो, राउंड ब्रैकेट शुरू हुई, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन फिर राउंड, फिर राउंड, एक राउंड बंद हुई तो ये खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे पहले ये खत्म हो गई. दिस कैन बी डन बट देयर इज वन सिंगल लेफ्ट, एक ये अनकवर्ड रहेगी. इस हिसाब से आप देख लो कि उसकी इक्विवेलेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रेजेंट होनी चाहिए. नो डाउट इन एनी ऑर्डर इट कैन बी देयर. जो आज आपने देखना है, सबसे पहले ये देखो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं. ठीक है? Arithmetic expressions, any expression that makes use of operands and operators. Operand किसको बोलते हैं? Operand किसको बोलते हैं? Arithmetic expression जिसके बीच में ऑपरेशन हो रहा होता है. Yes, the values between which the operation has to be performed, and operator is termed as the operation. ठीक है? जैसे I am saying a plus b,
if this is an expression, then it is obviously means can be verified that the sum between a and b variables has to be performed. The sum operation between the variables a and b, or the symbols or the values of a and b are to be summed up. So in that way we can say any expression that makes use of, yeah, that involves making use of operands as well as operator is termed as an expression. ठीक है? अब एक्सप्रेशन तीन तरह से हम लिख सकते हैं. One is termed as infix, one is termed as prefix, and third is termed as postfix. इन सब के नाम डिपेंड करते हैं ऑपरेटर के यूज पे. अगर ऑपरेटर इन का मतलब इन बिटवीन है तो इनफिक्स. प्रीफिक्स अगर ऑपरेटर पहले है तो प्रीफिक्स. पोस्ट फिक्स, पोस्ट मीन्स बाद में, अगर ऑपरेटर बाद में है तो पोस्ट फिक्स. यानी कि एक ही एक्सप्रेशन है a प्लस बी, अगर उसको a प्लस बी की फॉर्म में लिखा तो इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ये उसकी इनफिक्स नोटेशन है. अगर उसको प्लस ए बी की फॉर्म में लिखा है तो इट इज टर्म्ड एज प्रीफिक्स. अगर उसको ए बी प्लस लिखा है तो इट इज टर्म्ड एज पोस्टफिक्स. ठीक है जी. हमने कहा है कि जो स्टैक है दैट इज हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग दिस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने में हेल्पफुल है. कैसे? The we'll provide originally in normal real life we'll be having infix notations of expressions with us. कोई भी एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है मेरे पास, let it be a plus b multiply by c divide d, ठीक है, then power to f, कुछ भी, so on, with a lot of brackets involved in it and so on. It can be any of the expressions. Normal real life में जब मैथ्स भी आपके पास होता है तो आपको इनफिक्स नोटेशन में एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं टू सॉल्व द एक्सप्रेशन. कंप्यूटर को भी हम वैसे ही सप्लाई करेंगे. लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर को इनफिक्स एक्सप्रेशन सॉल्व करना नहीं आता. कंप्यूटर क्या करता है? इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करता है. Then it will calculate the postfix notation and give you the result. The result is equivalent to infix notation. बात समझ लगी? स्टैक्स ने क्या करना है? स्टैक ने इनफिक्स एक्सप्रेशन लेना है, इनपुट, उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके फिर उसकी इवैल्यूएशन करनी है. इन दिस वे स्टैक्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि ये आज हमने करना है. हमने पहले इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना Yes, है. पहले इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, देन आई विल बी कैलकुलेटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड गिविंग यू द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग. सुनो इसको, क्योंकि दिस यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग. बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, बहुत कम बार पूछा जाता है पेपर्स में, अभी तक मैंने नहीं देखे, लेकिन ये फ्रॉम डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डिप्लोमा में इसका इतना नहीं है. एप्लीकेशन सीधा क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, जिसमें आपने एक ब्रीफ नोटेशन की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर जाना है. इंडिविजुअली ये टॉपिक नो डाउट आपकी बुक्स में सेपरेटली दिया है कि यू हैव टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. कभी पूछा नहीं जाता, सुनते हैं फिर भी एक बार. This is how we'll be converting the infix to, this is the infix expression. At last I'll be getting this postfix expression. ठीक है, how it will be performed? What? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैं अटेंडेंस लग गया कौन है बच्चे? मैम 540 अंकित. अंकित जी मैंने उद्दे ही मैसेज कर ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ Okay, ਆਉਂਦਾ sorry ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. मुझे टॉपिक ही पता नहीं लगता. व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? अरे भाई म्यूट रखा करो अपने आप को. चलो सुनो, अब सबसे पहले आपको बिफोर डिस्कसिंग विद यू पीपल दिस स्लाइड आई विल बी डिस्कसिंग these operators, the priority of operators. ये operators देखिए आपने, this is a power operator. जैसे कहते हैं ना x to the power 2, x to the power 3, e to the power 4, e to the power half, कुछ भी. This is a power operator. This is a division and multiplication operator. This is a plus and minus operator. अब इनकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी मीन्स प्रेफरेंस.
जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन में ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं, हमने प्रेफरेंस किसको देनी है? हमने प्रेफरेंस देनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स। फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, सेकंड इसको, देन थर्ड इसको। या इसको आप कोरिलेट कर सकते हो विद दीज फैक्ट्स। पहला प्रिंसिपल है, दूसरा एचओडी है, तीसरा टीचर है। इफ आई से दिस इज अ क्लास, अगर ये हमारे पास एक क्लास है, क्लास जैसे आप क्लास में बैठते हो, R8 या अज्यूम कर लो, दिस इज द क्लासरूम नंबर 8, यू आर ऑल सिटिंग ओवर हियर, ठीक है, यू आर द स्टूडेंट्स। नाउ द फैक्ट इज, if right now the principal sir is in the class, he is giving you some lecture, and at the door HOD sir is present, then is he able to enter the room? अगर एक बड़े ओहदे का इंसान तुम्हारी क्लास में प्रेजेंट है और उनसे कम ओहदे का इंसान बाहर खड़ा है, is he allowed to enter the room? No. The fact is HOD sir has to wait until the principal sir will come out of the room and then he'll enter the room. The same fact holds for teachers. If HOD sir is in the room and the teacher is waiting outside, the teacher is not supposed to enter the room. First of all, HOD sir will come out and then only the teacher is allowed to enter the room. इस फैक्ट को याद रखोगे, then only you will be able to calculate the infix to postfix conversion. postfix में कन्वर्ट कैसे हो रहा है? कहने का मतलब है, इसको इनडायरेक्टली हम ये भी लेके चलते हैं, अगर एक स्टैक है, एक स्टैक में अगर एक ऐसा ऑपरेटर पड़ा है, एक स्टैक है, क्योंकि स्टैक की हेल्प से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक स्टैक है जिसमें एक ऐसा ऑपरेटर पड़ा है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जैसे प्रिंसिपल सर है, पावर ऑपरेटर पड़ा है, कहने का मतलब है, जिसको हमने प्रिंसिपल सर माना है। अगर अब सेकंड ऑपरेटर स्टैक में आने की कोशिश करे, डिवाइड ही मान लो, जो कि HOD है, तो ही इज नॉट अलाउड। तो सबसे पहले अगर डिवाइड को स्टैक में जाना तो क्या करेगा? हमने स्टैक से पॉप ऑपरेशन पहले एग्जीक्यूट करना है और इसको बाहर निकालना है, देन ओनली द डिवाइड विल कम ओवर इट्स प्लेस। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस Yes, ma'am. यस मैम। ये याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल सर रूम में है, अगर प्रिंसिपल सर रूम में है, HOD सर नहीं आएंगे। पर द फैक्ट इज, अगर HOD सर रूम में है तो प्रिंसिपल सर एंटर कर सकते हैं। अगर छोटे ओहदे का इंसान अंदर है तो बड़े ओहदे का इंसान एंटर कर सकता है, दैट इज नॉट एन इश्यू। ठीक है? इज दिस पॉइंट ऑल्सो क्लियर टू यू पीपल? पहली बात Ma'am. तो आपने ये याद रखनी है कि जब प्रिंसिपल सर है तो HOD नहीं आएगा। पहले प्रिंसिपल सर बाहर जाएंगे, फिर HOD आएगा। अगर HOD है तो टीचर नहीं आएगा, HOD बाहर जाएगा तो टीचर आएगा। अब बात आती है, अगर टीचर है तो HOD आ सकता है? हाँ। अगर HOD है, प्रिंसिपल सर आ सकते हैं? हाँ। मतलब रिवर्स ऑर्डर में दे आर अलाउड, बट इन दिस ऑर्डर फ्रॉम प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी, they are not allowed. And if I can say between two HODs, अगर एक HOD और दूसरा HOD बाहर खड़ा, फिर तब भी वो अलाउड नहीं है। एक HOD को बाहर जाना ही पड़ेगा। जैसे टीचर की बात ही करते हैं, प्रीति मैम का लेक्चर चल रहा है, मेरा लेक्चर चल रहा है, प्रीति मैम पढ़ा रहे, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, तो आई एम नॉट सपोज टू एंटर द रूम until or unless प्रीति मैम लेफ्ट द रूम। ठीक है? तो इन दोनों पे भी वही एप्लीकेबल है, इन दोनों पे भी यही एप्लीकेबल है। नाउ इज इट क्लियर? क्योंकि ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। चलो अब सुनो इसका एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। सबसे पहले क्या करना है, वील बी हैविंग एन एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, लेट एक्स बी द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे ऑपरेंड्स हैं, जो कि हमें इनफिक्स नोटेशन में अवेलेबल है। एंड माय प्रॉब्लम इज टू फाइंड द इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन y। मैंने ये y कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? ये सारा इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में एल्गोरिथम है, जो मैं बोलूंगी ना वो सारा ही काम भी होना है और वही एल्गोरिथम बन जाना है। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू एंटर, आई हैव टू पुश लेफ्ट ब्रैकेट टू द स्टैक एंड आई हैव टू ऐड राइट ब्रैकेट एट द एंड ऑफ x। ये x के एंड में ऐड करनी है। क्यों? दिस विल मार्क द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर मैं ये नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कब स्टार्ट हुआ कब एंड हो गया।
दिस राइट ब्रैकेट विल अलाउ अस टू स्टॉप, किस पॉइंट पे जाके स्टॉप करना है। तो दिस इज वेरी एसेंशियल। सबसे पहले इसको लेकिन स्टैक में डालना है लेफ्ट को, और राइट को इनफिक्स के एंड में डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू स्कैन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो भी एक्सप्रेशन दिया है a प्लस b मल्टीप्लाई बाय c, लेट इट बी दिस इज एक्सप्रेशन, और रिपीट करने हैं स्टेप्स 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ x। ये सारे स्टेप्स रिपीट होने हैं, यहाँ तक जितना भी काम है वो सारा रिपीट होना है। कब तक? until there is an element और until the stack is empty। जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाती, यानी कि टॉप लेस देन 0 नहीं हो जाता, तब तक हमने, क्योंकि यहाँ पे टॉप हमने 0 कर दिया ना, लेफ्ट ब्रैकेट को पुश करते ही टॉप की वैल्यू क्या होगी? 0। बोलो, कल करवाया था ना, टॉप की वैल्यू क्या होती है? कुछ तो बोलो। जब लेफ्ट ब्रैकेट, ये स्टैक है, जब मैंने लेफ्ट ब्रैकेट को पुश किया फर्स्ट स्टेप में, तो मेरा टॉप क्या हो गया? 0। और जब स्टैक एम्प्टी होगी तो टॉप क्या होगा? लेस देन 0। ये कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। वो कहता है जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक ही काम रिपीट करो। स्टैक एम्प्टी कैसे चेक होगा? जैसे टॉप लेस देन 0 हो जाएगा। पूरी कोडिंग नहीं की उसने, सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दिया कि इसके लिए आप कोड कर सकते हो। अब क्या वो कहता है कि काम होना कैसे है? वो कहता है इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड। ऑपरेंड क्या था? ऑपरेंड क्या है इसमें, इस एक्सप्रेशन में? A B C। यस, इफ दीज वैल्यूज आर एनकाउंटर्ड, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप स्कैन कर रहे हो, अगर ये वैल्यू मिलती है सीधा क्या करो? पोस्टफिक्स में ऐड कर दो। वाई इज अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स में जैसे सबसे पहले मैंने क्या स्कैन किया? लेफ्ट को तो मैंने पुश कर दिया था स्टैक में, अब सबसे पहले क्या स्कैन हुआ? ए को मैंने सीधा पोस्टफिक्स में डाल दिया, कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर कहता है इफ लेफ्ट पेरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड पुश इट ऑन टू स्टैक। अगर तुम्हें एक्सप्रेशन में मान लो कहीं पे लेफ्ट पेरेंथेसिस भी मिलता है तो उसको भी आपने पुश करना है स्टैक पे, लाइक दिस, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको एक्सप्रेशन में मिल सकती है, एक तो आपको एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स मिल सकते हैं, एक आपको ब्रैकेट्स मिल सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, एक आपको ऑपरेटर मिल सकते हैं। बस 4 चीजें हैं, ऑपरेंड, ऑपरेटर, लेफ्ट ब्रैकेट एंड राइट ब्रैकेट। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो कहता है अगर आपको लेफ्ट ब्रैकेट भी मिलती है तो क्या करो? सिंपली उसको पुश कर दो स्टैक पे, धक्का मार दो उसको भी, ठीक है। अब तीसरी चीज है, अगर आपको ऑपरेटर मिलता है तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है? उसकी प्रायोरिटी, जो मैंने अभी आपको सिखाई है, ठीक है। इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, repeatedly pop from stack and add to y each operator which has the same precedence or higher than the operator। वो कहता कि अगर ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ है और मान लो आपकी स्टैक में अभी राइट नाउ डिवाइड पड़ा था, अब तुम्हारा ऑपरेटर जो एनकाउंटर हुआ है दैट इज मल्टीप्लाई। अगर ऐसा ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ है तो पॉप करो स्टैक में से ऑपरेटर्स को, कौन से? जिनकी प्रेसिडेंस हाई है, जैसे प्रिंसिपल सर को बाहर आने दो, या जिनकी सेम है कि एचओडी भी अगर एंटर करने की कोशिश करे तो पहले दूसरे एचओडी को बाहर आने दो। अगर ऐसा कुछ है, उनकी प्रेसिडेंस है, तो पहले उनको बाहर निकाल लो, ठीक है। फिर क्या करना है? अगर जब ये काम हो जाता है देन यू हैव टू ऐड ऑपरेटर टू स्टैक। फिर वो ऑपरेटर एक बार स्टैक में जरूर जाएगा, हर ऑपरेटर ने स्टैक में जाना ही जाना है, लेकिन चेक करने के बाद कि उसका प्रेसिडेंस या उसकी प्रायोरिटी कहीं कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही। और कन्फ्लिक्शंस कब होते हैं? जब उससे बड़ा बैठा है कोई ऑलरेडी स्टैक में, या सेम उसकी लेवल वाला बैठा है। अगर छोटा बैठा है उसको कोई दिक्कत नहीं, टीचर एचओडी आके बैठ जाए साथ में, कोई फर्क नहीं, पर एचओडी बैठा है टीचर आके नहीं बैठ सकता। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। तो पहले उसकी प्रेसिडेंस वैलिड होनी चाहिए, सेम प्रेसिडेंस या हायर प्रेसिडेंस वाले को बाहर निकाल दो, फिर उसको ऐड करो स्टैक में, ठीक है। और लास्ट था, अगर आपको राइट पेरेंथेसिस मिल रही है तो क्या करना आपने?
स्टैक में से एक एक करके एलिमेंट निकालने शुरू करने, पॉप करने शुरू करने, जब तक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट पेरेंथेसिस नहीं मिल जाती। ठीक है, ऐसा करते करते लेफ्ट पेरेंथेसिस जब मिली उसको भी रिमूव कर दो और ऐसे एंड हो जाएगा। और एट द एंड जब स्टैक एम्प्टी होगी तो आपको क्या मिलेगा, आपका पोस्टफिक्स नोटेशन मिल जाएगा। ठीक है, एक बार इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, देन यू विल बी मोर क्लियर। इज द स्क्रीन विजिबल? एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. हम इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे। द प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन 2 प्लस ब्रैकेट 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इनटू पोस्टफिक्स, जो इवेल्यूएट करके ये वैल्यू आएगी। तो मेरा काम कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले मैंने क्या कहा था, द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम वर्क्स इज आई नीड टू पुश दिस सिंबल लेफ्ट ब्रैकेट, पुश left bracket to, this is not C, this is left bracket, ठीक है, लेफ्ट ब्रैकेट ऑन टू स्टैक। ठीक है, और ऐड करनी है टू द राइट ऑफ इनफिक्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। लेफ्ट ब्रैकेट को पुश कर दो स्टैक में और उसी के इक्विवेलेंट एक राइट ब्रैकेट जो है आपने क्या करनी है, एट द एंड ऑफ इनफिक्स ऐड कर दो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या था, 4 चीजें आपको स्कैन करनी है। स्कैन करना है लेफ्ट टू राइट जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होती। अब 4 चीजें स्कैनिंग में 4 चीजें आ सकती है। स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, सबसे पहले 2 इज एन ऑपरेंड। तो उसने 2 के केस में क्या कहा था, अगर ऑपरेंड स्कैन होता है तो क्या करें, बोलो बोलो, अगर ऑपरेंड स्कैन करते हैं तो क्या होगा, उसको सीधा पोस्टफिक्स में ऐड कर दो। यही था, ऑपरेंड पे हमने कुछ नहीं करना। जैसे ऑपरेंड्स यहाँ पे क्या है 2 4 1 3 ऑल आर ऑपरेंड्स, इसको हमने कुछ नहीं करना, सीधा पोस्टफिक्स का पार्ट बन जाएंगी। स्टैक में कौन जाएगा, ऑपरेटर और ब्रैकेट्स। तो 2 स्कैन हुआ सबसे पहले, द फर्स्ट स्कैनिंग एलिमेंट इज 2, सिंपल स्कैन मैंने लिखा है 2, तो 2 को सीधा मैंने पोस्टफिक्स में डाल दिया। नेक्स्ट उसने क्या स्कैन किया, 2 के बाद क्या है प्लस, प्लस क्या है ऑपरेटर, तो ऑपरेटर कहाँ जाएगा, स्टैक में। लेकिन चेक होगी कोई कन्फ्लिक्शन तो नहीं है, अभी तो स्टैक में कुछ था ही नहीं, कोई और ऑपरेटर है ही नहीं ब्रैकेट के साथ, तो वो सीधा पुश हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई उसको। नेक्स्ट क्या है 4 इज एन ऑपरेंड, सॉरी नेक्स्ट इज अ ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होगी, फिर से पुश हो जाएगी स्टैक पे। नेक्स्ट क्या है 4 इज एन ऑपरेंड, ऐड हो गया पोस्टफिक्स में। नेक्स्ट क्या है माइनस, ठीक है। अब माइनस क्या है, स्टैक में जाएगा, क्यों, प्लस और माइनस कंफ्लिक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो सेम जगह पे बैठे हो, ये ब्रैकेट उसकी जगह बदल रहा है, उसकी रेंज बदल रहा है, उसकी नेस्टिंग कर रहा है, तो ये उसको प्रॉब्लम नहीं करेगी, तो माइनस भी स्टैक में चला गया। अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट ना होती ना, तो पहले क्या होता, प्लस जो पोस्टफिक्स में जाता, फिर माइनस एंटर होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, अगर ये मान लो ये वाली ब्रैकेट ना होती, ये 4 से पहले जो ब्रैकेट है ना, अगर ये ना होती तो क्या था, स्टैक में क्या पड़ा था, ये प्लस। अब माइनस को पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस ने जाने से पहले क्या करना है, पहले प्लस को बाहर निकाल देना था, प्लस पोस्टफिक्स में चला जाता और फिर माइनस अकेला यहाँ पे स्टैक में रह जाता, ये हो जाना था। पर अभी ऐसी दिक्कत नहीं आई, इसकी रेंज बदल गई तो माइनस भी स्टैक में चला गया। माइनस के बाद क्या आया, 1 स्कैन हुआ है, 1 क्या करेंगे, फिर से पुश कर देंगे, इसने स्टेप स्किप कर दिया, 1 भी पुश होगा पहले पोस्टफिक्स में। देन 1 के बाद आया राइट ब्रैकेट, राइट ने क्या करना है, राइट ब्रैकेट के एनकाउंटर होते ही पॉप करना शुरू करो स्टैक को, कब तक, जब तक लेफ्ट नहीं मिल जाती। तो पहला एलिमेंट क्या था, माइनस, माइनस आके पोस्टफिक्स में चला गया, लेफ्ट ब्रैकेट मिली, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट ब्रैकेट को लास्ट में रिमूव कर दिया। ये स्टेप देखो, if a right parenthesis is encountered, repeatedly pop from stack and add y to each operator, हर उस ऑपरेटर को y में ऐड करी जाओ इन रिवर्स ऑर्डर until left bracket is encounter, और बाद में उसको रिमूव भी कर दो। वही मैंने किया, माइनस अकेला पड़ा था, माइनस को रिमूव करके पोस्टफिक्स में डाला, लेफ्ट ब्रैकेट मिल गई,
उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या आया, मल्टीप्लाई ऑपरेटर। अब देखो मल्टीप्लाई क्या ऑपरेटर, इसमें स्टैक में जाना है, स्टैक में ऑलरेडी प्लस पड़ा है, प्लस क्या था टीचर, मल्टीप्लाई क्या था एचओडी, टीचर के बाद एचओडी आ सकता है, यस। बात समझ लगी, यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो टीचर के बाद एचओडी आ गया, स्टैक में मल्टीप्लाई इज अलाउड टू एंटर, तो एंटर कर गया। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या था 3 फिर से हम पोस्टफिक्स में ऐड कर देंगे। 3 के बाद क्या है, राइट ब्रैकेट। ठीक है, राइट ब्रैकेट के लिए क्या करना है, तुम पॉप करना शुरू करो। सबसे पहले क्या पॉप होगा, मल्टीप्लाई जो टॉप ऑफ द स्टैक पे है, तो मल्टीप्लाई ऐड हो गया स्टैक में। उसके बाद क्या पॉप हुआ, प्लस, प्लस ऐड हो गया। प्लस के बाद क्या पॉप हुआ, लेफ्ट ब्रैकेट मिली, तो लेफ्ट ब्रैकेट को सिंपली रिमूव कर देगा, स्टैक खाली, ऑपरेशन खत्म। तो ये मेरा पोस्टफिक्स कन्वर्ट हो गया इस वे में। Is the point clear? Now you will try this one. Let's see. You need to convert this infix expression to your postfix. Right now you will start doing. I'll be giving you 10 more minutes after this lecture क्योंकि second lecture भी मैं ही continue करूँगी. But by the meantime you have to complete this one. अगर फिर भी कोई दिक्कत है, I'll be repeating the same process. नहीं तो मैं queue पे move कर जाऊँगी इसके बाद. करो start. All of you switch on your videos. Let me check कौन कर रहा है कौन नहीं. Write down the expression. मैं sharing stop कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं check करूँ क्या कर रहा है. लिख लिया सबने, लिख लिया सबने? Fine. Just switch on your videos. Let me check. Class, switch on your videos. Notebooks की तरफ switch करो. नोटबुक शो करो मुझे अपनी, क्या कर रहे हो, एक्सप्रेशन लिख के कैसे सॉल्व कर रहे हो. लेट मी चेक. What you need to do is just let me clear you. Class, what you need to do is you need to write the arithmetic expression on the top. Then you need to make 3 columns. The first is the current symbol. Yeah, symbol scanned. कौन सा symbol scan हो रहा है? ठीक है, in the very first thing. In the second, you need to write what are the contents of stack, second column में. In the third column, you need to write postfix expression, जो कि आपको last में result दे देगा. These 3 columns you need to maintain. ठीक है, and then start the process. First of all, you will be starting with pushing off the left parenthesis to stack, and right now adding light parenthesis at the end of infix, because this is the starting and the terminal point of the infix expression. ठीक है, then you start the process. Let's do it. Tell me the expression. क्या था expression? ए बोलो, एक्सप्रेशन क्या था? ए माइनस B बी plus C प्लस सी, देन multiply D मल्टीप्लाई डी bracket close and divided by E. डिवाइड बाय ई. दिस इज एक्सप्रेशन. और ये राइट पैरेंथेसिस मैंने ऐड किया है उसका एंड पॉइंट क्रिएट करने के लिए. सबसे पहले क्या होगा, आई विल बी स्टार्टिंग विद सिंबल स्कैनिंग ऑफ ए.
लेफ्ट से स्कैन कर दी मैंने, क्योंकि ये पार्ट था उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग का। लेफ्ट पुश कर दी, सबसे पहला सिंबल आया। अब ए कहाँ जाएगा? पोस्टफिक्स में। नेक्स्ट बोलो। मैम माइनस। माइनस कहाँ जाएगा? मैम माइनस मैम स्टैक में चल जाएगा। स्टैक में चला जाएगा, ये चला गया। नेक्स्ट मैम उसके बाद मैम सी। लेफ्ट ब्रैकेट, नहीं मैम लेफ्ट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट। ठीक है, वो भी स्टैक में गई। लेफ्ट के बाद बी, बी कहाँ गई? पोस्टफिक्स में। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। ठीक है, बी के बाद क्या आया? प्लस। प्लस ने कॉन्फ्लिक्ट नहीं डाला, क्यों? क्योंकि उसकी रेंज बदल चुकी है। प्लस भी चला गया। प्लस के बाद क्या आया? सी। सी कहाँ गया? पोस्टफिक्स में। सी के बाद आया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जा सकता स्टैक में, उसकी प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही। नो मैम। नहीं, तो इसके बाद मल्टीप्लाई भी इधर स्टैक में चला गया। मल्टीप्लाई के बाद क्या हुआ? डी। डी कहाँ गया? पोस्टफिक्स में। देन मल्टीप्लाई के बाद डी आ गया। डी के बाद राइट ब्रैकेट। राइट ब्रैकेट के टाइप में क्या करना है? पॉप करना है। पहला पॉप किया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पोस्टफिक्स में डाला। दूसरा पॉप किया प्लस, प्लस पोस्टफिक्स में डाला। फिर क्या मिला उसे? लेफ्ट ब्रैकेट। तो लेफ्ट ब्रैकेट को रिमूव करना उसका काम था। तो ये सारे अब खत्म हो गए, तो स्टैक में क्या रह गया? माइनस तक। यहाँ पे वो स्टॉप कर देगा प्रोसेस पॉपिंग का। ठीक है, नेक्स्ट उसे ऑपरेटर क्या मिला? डिवाइड। डिवाइड ने कॉन्फ्लिक्ट डालना है? नहीं। माइनस के बाद डिवाइड आ सकता है? यस, डिवाइड भी एंटर कर गया। राइट ब्रैकेट, पॉप करो। पहले क्या आया? डिवाइड, फिर क्या आया? माइनस, और ये लेफ्ट ब्रैकेट खत्म हो गई, स्टैक एम्प्टी हो गई। दिस इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यू विल बी गेटिंग। इज दिस क्लियर? Few people. क्लास पेज नंबर 162 नोट डाउन जल्दी। पेज नंबर 162 पे एक इनफिक्स दी है, उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो। 10 मिनट का टाइम आपके पास। ये क्लास बंद होने वाली, 10 मिनट बाद ज्वाइन करना आप, यानी कि एग्जैक्टली एट 10 o'clock यू विल ज्वाइन फॉर नेक्स्ट लेक्चर। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चे? मैम सेम लिंक। हाँ सेम लिंक से, लेकिन पेज 162 सॉल्व करके रखो। 15 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं। मैम 1503 मैम प्रेजेंट कर देना। कर देती। बुक्स है सबके पास कि मैं शेयर करूँ? मैम 522 भी कर देना। कर देती।